Again, very quickly, so we said that they are past and present outcomes of negation. So negation outcome can be a past sentence or a present sentence overall, but you can use present and past tense both type of fail to do negations. Ma, la, lam, lan, lamma are the words that we use for negations, and now we are looking at which one goes with which. Ma can be used with past tense fail and present tense fail, la with present tense fail, lam with present tense fail, lan with present tense fail. This is lan. And lamma is used with present tense fail to produce negation, but when it is used with past tense, it is not negation scenario, it is just meaning when. ठीक है, यहां तक क्लियर है? माइंड में एक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंफ्यूजन तो बहुत नहीं हो रही? तो अब आप देखेंगे मेजॉरिटी जो नेगेशंस हैं वो प्रेजेंट टेंस के साथ हो रही हैं. ला, लम, लन, इवन लम्मा. ठीक है, नाउ दीज फोर, la, lam, lan, lamma, when you see them and you see a present tense in front of them, so you are almost sure this is the negation sentence. Okay, so that's what I'm trying to bring to you. Lekin when you see, let's say, lamma and you see past, it's not a negation. So you're talking about present tense. Yeah, it's not a negation. माँ के केस में आपका एनालिसिस सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि माँ एक तो नेगेशन के लिए यूज होता है, फिर ये क्वेश्चनिंग के लिए भी यूज होता है, फिर ये एज इसम मौसूल भी यूज होता है, और बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं. तो माँ इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन, एंड एज वी लर्न मोर टाइप्स ऑफ माँ गोइंग फॉरवर्ड, you will know more. So not every ma plus present tense or past tense that you see is a negation. आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, हो सकता है आपको थोड़ी ट्रांसलेशन की भी हेल्प लेनी पड़े उसको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट को, बट मा इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन. ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा कुरान एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं. जस्ट अप्लाई दोस थिंग्स. मैं कुछ आयात यहाँ पे निकाल के लाया था आप लोगों के लिए. सो लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस. सो दिस इज सूरह बकरा. आई थिंक दिस आया नंबर 4. Wait a second. जी, wait a second. लज़ीना कफ़रू सवाउन. जी, ठीक है. Now innal लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम. लम तुनज़िरहुम. Is it a negation that produces a past tense outcome or a present tense outcome or a future? Present. अच्छा, ये जो फेल है ना, इसको उठाते हैं हम. तुनज़िरु. ठीक है, लाइटेस्ट फॉर्म में. This is lightest form because it is lam. ठीक है, lam is lightest harf, therefore it is lam. So the original form was tunziru. ठीक है, tunziru, tunzirani, tunziruna, tunzirina and so on and so forth. ठीक है ना, आप पूरा चार्ट इसका पढ़ सकते हैं. So now this fail basically is a present tense fail. But जब हमने ये काम किया था, जब हमने कहा था lam, wait a second, जब हमने कहा lam, लम यंसुर, इसका क्या मीनिंग बना था हमारा? He didn't help. He did not help. यही बना था ना? हाँ. So although present tense was used, the outcome was Past. negation in the past. Shams bhai, with me on this? Yes sir. ठीक है ना? तो what do you think would be here? lam tunzir. They did not, because whom is the outside doer, na? So they did not. चले हम इसको और थोड़ा सा डिकोड करते हैं. अच्छा फाद, ये whom मैं इसको इस तरह देखूं कि whom तुनज़िर जो है यंसुर ये हुआ ही फॉर्म में आ रहा है, तो इसका एक्सटर्नल डूअर आ रहा है, तो whom जो है वो एक्सटर्नल डूअर है. और नहीं, वो आगे चले जाओ. You all are going all over the place. ये सब आता है आपको, ठीक है? आउटसाइड डूअर तो उस केस में था कि सिंगुलर होना चाहिए था.
यानी हुआ या हिया है सिर्फ उस केस में होगा, लेकिन वो Got सिंगुलर it. नाउन होगा कोई। Got it. हाँ, Got पर it. ये जो तो वो तुनजिरु है ये मफूल है। यार ना करो ऐसा दोस्तों, नहीं नहीं, नहीं मैंने फाद भाई सॉरी, फाद भाई समझ में आ गया, सॉरी। ना करो यार प्लीज, नहीं ऐसा नहीं नहीं करो वो यार। देखो तुनजिरु का मतलब ही वार्न्स, ठीक है, he wants, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं लम तुनजिर, what would it mean? He did not He want did not want He did not want, them. them. yes। आपको याद है जब आपने पढ़ा था attaching the pronouns to the fails, and you learned the lesson, you learned the method that separate them, forget the pronoun for a while, translate the fail, ठीक है, and then put the meaning of a pronoun with it. You remember that method? हमने जब पढ़ी थी अर्ली स्टेजेस के अंदर, ठीक है। आपने he did not want and then comes the whom is them, whom is a maf'ul bihi, it's a jumla fi'liya, you have a fa'il which is huwa, you have a fail which is tunziru, and you have a maf'ul which is whom, ठीक है। तो हमने कहा था कि whenever a pronoun is attached to a fail it is always nasab and it is always maf'ul, ठीक है, याद आ गया? Good. So lam tunzirhum, he did not warn them, ठीक है, he did not warn them. The outcome is a past tense negation although the present tense is used, सही है। La yu'minun, what type of negation is this? La yu'minun, Present. present negation, because हमने देखा है कि la is always used with present, ठीक है ना। So la is going to be with present, it is going to produce a present negation। और हमने देखा था la के साथ 3 types की फॉर्म्स आती थी, एक आता था ला विद नेगेशन, एक फॉरबिडिंग थी, और एक रिकमेंडेशन टाइप की चीज होती थी, राइट। सो व्हिच वन इज दिस? ये जो है फर्स्ट वन है, नेगेशन है, क्योंकि नॉर्मल प्रोनाउन है, नॉर्मल नाउन है, नॉर्मल नाउन जो होते हैं उस चार्ट पे मैप होता है, इसलिए ये लॉ ऑफ नेगेशन है। तला नाउन का है इसमें? यूमिनून जो है वो प्लूरल है ना, नाउन है, वो नाउन है भाई, फेल है यार, फेल है फतला भाई। तला नाउन है, स्क्रू। हाँ सॉरी सॉरी हाँ अब बोलो, नाउ दैट इट्स फेल, क्या कह रहे हो? तो ये जो है ये नॉर्मल फेल चार्ट पे मैप होता है, इसलिए ये जो है लॉ ऑफ नेगेशन है। इट्स अ नॉर्मल फेल, नथिंग हैज चेंज्ड इन इट, ठीक है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल फेल। और जब ला प्लस नॉर्मल फेल आता है इट्स जस्ट अ सेंटेंस और ऑब्जर्वेशन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। युमिनु मींस दे बिलीव, तो व्हाट वुड ला युमिनु मीन? दे डोंट बिलीव, दे डू नॉट बिलीव, ठीक है, दैट नेगेशन फॉर्म। क्लियर हो गया? सही, यस। आगे बढ़ते हैं। सुम्मुम बुकमुम उमयुन फहुम ला यरजऊन, क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सी वाली है? 18 है। What type of negation is la yarji'un? सर अगेन प्रेजेंट और सेम है मेरा ख्याल से। नेगेटिव नॉर्मल नेगेशन। बिल्कुल। I'm just opening this ayah with me, मेरा जी। So जी, la yarji'un, raja'a yarji'u means to return, They will not return. they will not, नहीं, they do not return, They do not return, हाँ। अच्छा फहद, ये जो सुम्मुन बुकमुन है, उम्युन है जी, ये इनकी प्रॉपर्टी सेम लग रही हैं, ये मौसूफ सिफा होंगी या ये सारे सिंगुलर नाउन्स हैं बेसिकली? नहीं ये नाउन्स हैं,
Summum, bukmum. I think summum means deaf. Ummum Deaf, means dumb, and then bukmum means dumb, or ummun means blind. ये मौसूफ सिफात नहीं है, इंडिपेंडेंट. ये लिटिल दिस इज वे एडवांस कि अगर इनकी प्रॉपर्टीज मैच भी हो रही हैं, व्हाई आर दे नॉट मौसूफ सिफा, उसके और रीजंस हैं. ठीक है, हम अभी उधर नहीं जा रहे. सही है. अच्छा, अब हम देख लेते हैं ये वाली नंबर 12 जी. ला यशउरून. same. यशउरून सेम. Same. शाअरा यशउरू means to realize. They don't realize. So ये सब present tense में negation sentences हैं. ठीक है. ला तकूनु. ये चेंज है, ये लाइटेस्ट फॉर्म में है. ये है And लाइटेस्ट इज रिकमेंडिंग. past है. इसका होगा नहीं, नहीं ये वो है. क्या है? ये लाइट है, सिर्फ नून ये निकाला है ना. लाइट, नून खत्म हुआ तो लाइट. हाँ सही बात है, लाइट है. तो ये फॉरबिडिंग हो गया बेसिकली. ये ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट है. लाइटेस्ट फॉर्म यस है, बिल्कुल हाँ, है. सेकंड पर्सन लाइटेस्ट है. हाँ जी, ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट इज forbidding. फॉरबिडिंग. This is a forbidding statement. ला तश्तरू. ये भी Same. वही है, सेकंड Same. पर्सन फॉरबिडिंग स्टेटमेंट. ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट, forbidding statement. ठीक है. ला तलबिसु. सेम. Same. ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट. लम तफअलु. Present लम tense आता है negation. प्रेजेंट टेंस के अंदर. Present जी. tense negation. Present tense negation, yeah, meaning outcome of the negation. Is it a present tense or a past tense outcome? Past tense. Past. Past Past tense. past tense. Past tense outcome, right? Yes. But the fail is present tense. जी. ठीक है. They fa'ala, I think taf'alu का मतलब you don't do. ठीक है. They did not do. That's what this means. Let me quickly check. To fa'ala means जी to do सर. तो basically. you all हुआ ना. जी. तफअल हुआ. Yes. जी जी बिल्कुल. जी. और लन तफअलु. लन आई थिंक ये फ्यूचर के अंदर होता है. फ्यूचर विद लाइटेस्ट. This is future with light. राइट. हाँ सॉरी. Lan will give you the outcome in the future. So this is they did not do and they will not do. Sorry, you did not do and you will not do. That's what it means. तफअलु सेकंड पर्सन. यस. ठीक है. फहद भाई, जी. आपने लास्ट क्लास में बताया था कि लम और लम्मा जो है वो लाइटेस्ट करते हैं. जी जी. Am I right? जी जी तो बिल्कुल. यहाँ पे ये तफअलु जो है ये लाइट. हाँ ठीक है, लाइटेस्ट. क्योंकि नहीं. लाइट और लाइटेस्ट एक जैसा लगता है शम्स भाई, क्योंकि जी. दोनों में नून को रिमूव नून किया को जाता आप है. इग्नोर कर देते. सही. They look the सही. same. ठीक. ठीक और है. शम्स भाई, फहद ने लास्ट टाइम भी बताया था कि लम्मा और लम जो है ना वो लाइटेस्ट चार्ट के अंदर फॉर्म अगर आप देखें तो वहां से था कि लम के साथ हमेशा लाइटेस्ट फॉर्म आएगी, सॉरी लाइट फॉर्म आएगी, और लन क्योंकि लाइटेस्ट चार्ट के अंदर है तो वहां से लाइटेस्ट फॉर्म आएगी उसके साथ. जी. So although taf'alu both look the same, but one is the lightest and the other is light. The one with the lam is lightest, the one with lan is light. सही सही, ये कंफ्यूजन हुई थी. ठीक है. ठीक है. क्योंकि तो दो लास्ट different टाइम rules इसने हैं. एक अच्छी टिप दी थी कि ये चार्ट अगर आप देख लें तो आप उससे
बेसिकली आप जल्दी फ्रेगमेंट कर सकते हैं। फहद भाई अच्छी टिप देते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। लन नुमिना, लन नुमिना, आउटकम क्या है? पास्ट नेगेशन, फ्यूचर, प्रेजेंट। लन इज ऑलवेज इन फ्यूचर। लन इज अ फ्यूचर नेगेशन, ठीक है। व इज कुलतुम, कुलतुम कैसा वर्ड है? कुलतुम, You all said, you you all all said. said, नसरतुम, ठीक है। अंतुम नसरतुम, अंतुम कुलतुम, that's the same. Okay? It's an antum form of a past tense. Okay? When you all said Musa, meaning Musa is maf'ul. When you all said to Musa, lan nu'mina, we will not believe. Okay? नुमिना नसरना, हाँ सही, नसरना। यु'मिनु, यु'मिनानी, यु'मिनूना। अगर आप फाइव फेल देखें, यु'मिनु, तु'मिनु, तु'मिनु, उ'मिनु, यु'मिनु, नु'मिनु, ठीक है। जैसे वो था यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु। इसी तरह युमिनु, तुमिनु, तुमिनु, उमिनु, नुमिनु। नुमिनु turned into nu'mina because of lan. Okay? क्योंकि हमने उसे लाइट बनाया है ना फहद। जी, because lan makes it, नुमिना, because lan makes it night. हाँ, और जिस तरह यन शुरू का था ये नुसिरा, अच्छा हाँ ठीक है। नुसिरा। So this ayah is about when you all said to Musa that we will not believe on you until we see Allah. This is Bani Israel. Okay जी। Lan nusbira, nasbira. Future outcome or present or past is the same, right? It's lan and present tense to give you the future outcome. It's a similar pattern. When is qultum ya Musa, when you all said, oh Musa, we will not be patient. We will not be patient upon same type of food. This is the mano salwa wala वाक्य है ये, ठीक है। So same type of food. It's again Bani Israel. Lan yadkhula. Dakhala yadkhulu means to enter. To enter. यदखुला, Because he will not enter. That's what it means. ठीक है। Qalu, what is qalu? He, oh, Kalu. they said, They said. They said. They said he will not enter where? Al-Jannah. the paradise. Paradise. Right? तो आपको अब पर्सपेक्टिव ऐसा अपना बिल्ड करना शुरू करना है, because there's so many things happening. Now if you just look at Kalu independently, this is a fa'il, this is a fa'il. It's a full jumla fa'iliya in its own. ठीक है? जुमला फेलिया in its own. And then जब भी वर्ड कालू यूज होता है, मैंने आपको शायद पहले बताया था, काला जो फेल है ना, he said, इसके बाद आप इमेजिन करें दे आर इमेजिनरी कोट्स, जो आप कोट्स लगाते हैं इंग्लिश में भी, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसको अरबिक में मकूलुल कौल कहते हैं, समथिंग दैट इज सेड, ठीक है। सो कालू दे सेड, एंड व्हाट डिड दे सेड, दिस इज व्हाट दे सेड। ये आप कोट्स के अंदर इमेजिन कीजिए, ये कोट्स है, ठीक है, कि ही विल नॉट एंटर जन्नह। और अगर आप इन कोट्स के अंदर डीप डाइव करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और फेल नजर आएगा, एक और फाइल नजर आएगा, और उसका मफऊल नजर आएगा अल जन्नह नसब में, ठीक है। इट्स अ फुल जुमला फेलिया इन इटसेल्फ। विद मी?
यस क्लियर है ना? ठीक हो गया। लन यदुर्रु अगेन फ्यूचर नेगेशन है, दे विल नॉट हर्ट। फ्यूचर नेगेशन यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, मा यखदऊना, इस सूरह बकरा आयत 171, लेट मी जस्ट गो देयर। इसी बिनफाद मा यखदऊना मुस्लिमूना यखदऊना यंसुरू यंसुरू। ये भी नॉर्मल इसम, नॉर्मल फेल चार्ट के ऊपर मैप हो रहा है और नॉर्मल निगेशन है विद ये माँ है, ये ये माँ ये है, बहुत नेगेशन है। ओह यस सॉरी ये दिस माँ मा है। नेगेशन जी। बट माँ भी तो यार लेकिन इससे नॉर्मल होता है उसके साथ माँ प्लस हाँ। पास नॉर्मल, माँ प्लस पास्ट। तो ये वो हो गया ना यंसुरूना। बकरा नहीं। 171 आ गई यार ये। क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैं एक्चुअली इस आयत को ढूंढ रहा हूँ अपनी ऐप के अंदर ताकि मैं इस पे लैंड कर सकूं, और मेरे पास नंबर कन्फर्म नहीं कर रहा। एक मिनट, मा यख्तऊना। अच्छा नहीं, ये रेफ्यूटेशन इन पास वो है, प्रेजेंट है, ये पास्ट नेगेशन नहीं है, क्योंकि यंसुरूना ये यफ्ताउना वो है ना, प्रेजेंट टेंस है ना। अगर तो पास्ट होता तो इसके साथ वो बनता। ये सिर्फ खदाऊना होता। हाँ हाँ जी, वो फिर ये present रेफ्यूटेशन में नहीं है, रेफ्यूटेशन बनेगी। ये रेफ्यूटेशन नहीं है, ये प्रेजेंट के अंदर रेफ्यूटेशन। हाँ जी, रेफ्यूटेशन है ये। जी, अब इसको इस तरह देखते हैं, देखें, लेट मी टेक इट डाउन हियर। जो आपका फेल है, दैट इज खदा यखदऊ, यखदऊ इज द ओरिजिनल फेल, ठीक है, दैट्स द वन, यखदऊ, ठीक है। उसकी प्लूरल फॉर्म हम वर्जन यखदऊना, और हमने देखा दिस फेल मींस टू डिसीव, ही डिसीव्ड, ठीक है, ही डिसीव्ड। अब हमने कहा था कि मा इज यूज्ड फॉर रेफ्यूटेशन इन अ डिबेट सिनेरियो, ठीक है। सो इसकी ऑल्दो कि ये रेफ्यूटेशन, ये नेगेशन है, बट इट्स अ रेफ्यूटेशन टाइप ऑफ नेगेशन, सो इसको आप यूजुअली इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, नो दे डू नॉट डिसीव, डिसीव, ताकि उसमें एक रेफ्यूटेशन का एस्पेक्ट शामिल हो। इट्स नॉट अ सिंपल नेगेशन जैसे ला के साथ होती है। अगर सिंपल नेगेशन होती है और कहना होता है दे डू नॉट डिसीव, इट कुड हैव बीन सेड ला यखदऊना। हाँ भाई, ये ही डिसीव नहीं होगा, डिसीव्ड की जगह पे यफ्ताऊ, क्योंकि प्रेजेंट है। जी, यहाँ पे डिसीव होगा, बिल्कुल करेक्ट, डिसीव होगा। तो अगर इसको नॉर्मल नेगेशन रखना होता, जस्ट लाइक अ सेंटेंस स्टेटमेंट, तो इट वुड हैव बीन विद ला। The reason ma is used is there's some sort of debate going on or some argument is going on with somebody, and then you are going to refute that argument, ठीक अच्छा है। फारिस को इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हमने किसी, जिस तरह हम इन्ना के अंदर लिखते थे इंडीड, और इस तरह थोड़े से एक्स जरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेस करते थे, इसी तरह अगर माँ आ जाए तो हम उस सेंटेंस को थोड़ी सी और एम्फेसिस देने के लिए उसको इस स्टाइल में लिखेंगे, लाइक नो और यस और समथिंग। एक तरह से नेगेशन का एम्फेसिस है ये, आप यूं समझ लो। हाँ नेगेट आपने स्ट्रांगली करना है, हाँ ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो कि हाँ, दिस इज एन एम्फेसिस फॉर नेगेशन। बट इन्ना वाला एम्फेसिस बहुत डिफरेंट एम्फेसिस है, और वो जो लाम वाला एम्फेसिस भी डिफरेंट एम्फेसिस है। वो नेगेशन अफर्मेशन का एम्फेसिस है, वो डिफरेंट सेंटेंसेस है वो। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस थ्रू आउट अ नेगेटिव स्टेटमेंट, and it is also in a situation where an argument is going on, ठीक है। आप इसकी पूरी कॉन्टेक्स्ट को पढ़े तो आपको एक आर्गुमेंट की एक वाइब मिलेगी कि इस पॉइंट में कुरान में क्या डिस्कस हो रहा है। ये बात भी उसी तरह से जिस तरह मतलब कोई बंदा कोई बात कहता है किसी को, जिस तरह उसमें कह ले कि इल्जाम या उसमें, तो फिर अगला
लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया था या वहां पे ऐसा नहीं हुआ था, इसी सेंस में आ जाएगा जी बिल्कुल। कि अगले ने पहले कोई चीज कही है किसी के बारे में जो जी गलत जी है, जी तो फिर उसको रिफ्यूट करने के लिए कि जी जी नहीं, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं। रेफ्यूटेशन तो इन हम्म रिस्पॉन्स ही होती है ना, हम्म पहले कुछ कहा जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में आप रिफ्यूट करेंगे। नॉर्मल नेगेशन है, वो नॉर्मल नेगेशन है, वो जनरल है, वो उसमें कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। जी। अब इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर यहाँ पे हम मजीद पढ़ लें, अब जैसे ये है युखादिऊना, युखादिऊना का मतलब है टू इसका मतलब ही डिसीव, युखादिऊना दे डिसीव, They deceived Allah. they deceive Allah, okay, हम्म and the ones who Believes. the ones who believe, ठीक है। now they deceive Allah, इसको आप इस तरह बेसिकली इसको इस कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज इट आई मीन कैन एनीवन डिसीव अल्लाह, नो, राइट। सो इसको आप जो ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज द वर्ड अल्लाह इज यूज्ड एंड इट्स अबाउट यू talking about Allah, you are going to say they seek to deceive or they want to deceive Allah, ठीक है, and the ones who believe, and no, No. they do not deceive except Except themselves, and they know they do not realize it, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट जो है इस वाले फेल का मतलब है टू रियलाइज। सो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट पार्ट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, एंड नाउ अल्लाह इज रिफ्यूटिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, नो दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस, ठीक है। तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। तो इसको माँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, ये उसको जरा समझने का। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन फ्रॉम recognition standpoint you are able to recognize ma plus present tense, and then it takes you to a journey on investigating if it is a refutation or not, क्योंकि माँ के साथ जरूरी नहीं है रेफ्यूटेशन ही हो। फॉर एग्जाम्पल माँ की एक मीनिंग है व्हाट और whatever, तो अब ये इनका इसका मतलब है दे डिसीव, तो यू कुड आल्सो से whatever they deceive, ठीक है। बट इफ यू से whatever they deceive, when you look around the context it might not make much sense. So to really understand if it is a refutation ma, you have to look around the sentences, the context a little bit more, okay? La yasma'u, ये प्रेजेंट टेंस नॉर्मल नेगेशन, present tense normal negation, ठीक है। sami'a yasma'u to means to listen, ठीक है। he don't listen. you don't listen, he does not listen, ठीक है, he doesn't listen। अच्छा, पिछले वाले में मैं आपको एक और टिप भी दे देता हूँ। जब माँ यूज होता है इल्ला के साथ, इल्ला मीन्स एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। they do not they do not deceive except themselves, तो इसको फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टैंड पॉइंट आप नथिंग बट के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। they do not deceive, they do not deceive themselves, they do not deceive but themselves, or they deceive nothing but themselves। जो नथिंग बट का ब्रैकेट है उसको आप जब आपको माँ और इल्ला नजर आए तो इट्स मोर, इट कैन बी लाइक नथिंग बट सिचुएशन, ठीक है। यू कैन कीप दैट इन माइंड। ला यअक़िलून, what type of negation is this? Normal present, normal present. present. They do not think, they don't think,
Ma farratna. ये कौन सी आयत नंबर है? 638 No. 638 अच्छा जी. What type of word is this? Farratna. पास्ट है और वो है Nasarna. फर्स्ट नसरना. पर्सन प्लूरल नसरना Third person we. As in वी हाँ प्लूरल जो होता है plural form. फर्स्ट पर्सन तलावे The fa'il. Third What is the person. file? File is nahnu or something नहीं else? फर्स्ट पर्सन है ना नसरना वी Nasarna. We. We. Third Nahnu. Nahnu. फर्स्ट है तलावे फर्स्ट है Nahnu is the first person. Na? Ana nahnu first person होता है. Sorry, first person. Third person. We. The fa'il and the file you have. ठीक है. So it's a ma plus past tense. नॉर्मल नेगेशन ठीक है. So this word means to neglect. No. We don't didn't neglect. neglect. We didn't neglect. Say. No, we didn't neglect. ठीक है. ये आया, one of my favorites in the Quran. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ये भी फौज normal present form है. तशाऊना is a present. present form. जी, और ये भी जो है second person. This means to want To or want. to wish. ठीक है. वो हो जाएगी ना रेफिटेशन हो जाएगी जी, this is refutation. This is no. No. You cannot. You do not wish. until. You do not wish basically. And when जब हमने कहा कि माँ और इल्ला जब साथ आता है तो it's kind of a nothing but scenario. ठीक है. एक और भी वर्ड फाद यूज किया था अभी पिछली दफा जब माँ नथिंग बट नहीं था कोई और थी फ्रेज यूज किया था. Except. Okay. This literally means except. ठीक है. So you are saying and no. You don't wish or want. But if Yasha Allahu. Yasha, what is Yasha'a? The same fi'il but in huwa form. ठीक है. Tasha'una and Yasha'a. Same fi'il. Yasha'a, Yasha'ani, Yasha'una. And from Yasha'una you have Tasha'una. Everyone with me? Yes. Tasha'una is a antum form and Yasha'a is a huwa form. ठीक है. So whenever you are having a huwa form, you should look for what? Outside doer. An outside doer. Is there an outside doer? Yes, Allah. Allah. The outside Lafzul Jalala is the outside doer. ठीक है. So no, you do not want except that. What type of word is an? Half of बाता काफ लाम वाव मिन फी अन नहीं इन्ना अन्ना नहीं नहीं दूसरी चीज है ना लाइट के लाइटेस्ट में करते हैं. Right. Think about it. Why Yasha'a is Yasha'a and not Yasha'u? Right? Present tense should be Yasha'u. It is made light because of an. ठीक है. Ain Yasha'a. ठीक है. It means that. ठीक है. Wama tasha'una. And no, you do not wish or cannot wish. ठीक है. Except that Allah wishes. Rabbul Alameen. Now, the word Allah and the word Rabb, is there a relationship? मौसूफ सिफा. Mawsuf sifa. Is the word Rabb and Rabbul Alameen, is there a relationship? Idafa. So this entire thing is a sifa, one. right?
ठीक है? So until Allah, Rabb of the world, wishes. ठीक है? So you इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. बट And फहद no, अगर जिस तरह तुम कहते हो आउटसाइड डूअर है अल्लाह, तो ये रब्बुल आलमीन सारा कनेक्टेड है, तो ये पूरा अल्लाह से लेके रब्बुल आलमीन तक एक पार्ट हो that जाएगा, full है ना? bucket is your Yes. outside doer. आउटसाइड डूअर, हाँ, ठीक एग्जैक्टली. है? So, and no, you don't or can't, whatever you want to translate, want, except, इसको literal translate करते हैं पहले, except that, un is that, Allah, the master of the worlds, wants. Yeah? अच्छा फहद, वांट्स क्यों एंड में लगाया? ये अनटिल अल्लाह Yes, वांट्स द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. जब आप फेल को उसके डूअर के साथ ट्रांसलेट करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू ब्रिंग द डूअर फर्स्ट. ठीक है ना? तलहा ड्रोव द कार. ठीक है? तो you bring the doer first, you translate the doer first. So what we have done is, after illa we had that which is un. ठीक है? Then we brought the entire doer, सही. Allah, the master of the worlds. ठीक है? Very nice. मौसूफ सिफा, wants, then comes the yasha. ठीक है? इसकी वेरिएबल ट्रांसलेशंस हो सकती हैं. आप नथिंग बट के सिनेरियो के साथ भी इसको देख सकते हैं. Let's try to produce and you cannot wish, and you cannot wish, sorry, or you can wish nothing but what Allah, the master of the worlds, wish. I mean, there are variable ways you can try to communicate this message. ठीक है? ये वाली जो translation है, this is not literal according to pure grammatical construct, but it also tries to give the same message. अब जो Arabic आया है, Arabic आया आपको ये basically बता रही है, and it's actually refuting. It's a refutation, because in our heart and mind we think we can do everything. ठीक है? We can wish for anything, we can do everything. So Allah is refuting that point. No, you just can't until I want it. So आप कुछ wish भी नहीं कर सकते, आप कुछ want भी नहीं कर सकते until Allah really wants it for you. ठीक है? So that's the power of this ayah. Okay? So very, very strong ayah. This one is 82, and ये सूरह शायद आप लोगों को आती भी हो, सूरह इन्फितार. यौम ला तमलिकु. Tamliku is to have power. Right. To have power. Okay. Now, what is the fa'il and fa'il of tamliku? फेल तो पता चले, फाइल कौन सा है इसमें, प्रोनाउन कौन सा है? कु. हुआ है इसमें? हुआ. अगर हुआ होता तो वो यंसुरु नहीं होता, यमलिकु नहीं ये होता. सॉरी, इसमें हुआ हिया, हुआ ही, हुआ हुमा हुम, हिया. हिया. It can either be here or it can be anta. अंता. हिया तंसुरु, अंता तंसुरु, सेम होते हैं. ठीक है ना? So this is ta beginning and u ending. It's hiya or anta. If it is here, we should look for what? External doer. An external doer. So let's try to find it. Is there one? Nafs. Nafsun. 4 properties of nafsun. Anyone can tell me 4 properties of nafsun? Status. Singular. Status. अच्छा, रफा. Rafa. Singular. Number. Singular. Common. Gender.
हाँ ठीक है. और कॉमन और क्या रह गया? Gender. जेंडर. मेल ये बेसिकली masculine. नफ्सुन इज बेसिकली हाँ, बिकॉज अरब सेड सो है. हाँ, because Arab said so, Now we are because Arab talking. said so, because Now Arab you said know why it is tamliku, not yamliku. Yeah, because the outside doer is feminine. You have to use hiya form of the fail, right? That's why tamliku. Otherwise yamliku. Now you're talking. Okay. So la tamliku. This means to have power. Okay. It means no nafs have power. Okay. On that day, no nafs have power. Li nafsin, on any other nafs or anything. Wal amru, and the command on that day, yawma izin, is only for Allah. Okay? That's what it is saying. सूरह मुनाफिकून, जिसपे आप लोगों ने काफी टाइम लगाया उसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर, ठीक है, उसमें ये स्टेटमेंट है, लम तस्तगफिर. What type of negation is this? Tell me the huwa form of tastaghfir. Let's see if you can go there. Huwa form of tastaghfir. yastaghfir. Yastaghfir, और पूरी फॉर्म क्या होगी? यस्तगफिरा. Yastaghfiru. Yastaghfiru. Very good. और लाइट फॉर्म होगी यस्तगफिरा. अगर मैंने अगर अना के ऊपर, what is going to be the ana form of yastaghfiru? अस्तगफिरु. आप क्या कहते हैं जब अस्तगफार करते हैं? तो अस्तगफिरुल्लाह. अस्तगफिरुल्लाह. I seek forgiveness of Allah. Astaghfirullah, that's the same fail. ठीक है? Yastaghfiru, he seek forgiveness. ठीक है? Tastaghfiru, you seek forgiveness. या she seeks forgiveness. ठीक है? Now, lam tastaghfir. Lam make it lightest. Lam makes it lightest. And now we have tastaghfir. Tastaghfir का मतलब है you seek forgiveness. Lam tastaghfir would mean what? You do not seek forgiveness. Do not or Did not. Did not. Lam pushes a meaning in the past. The outcome is past. आप लम को ना इजा का ऑपोजिट समझें. यार ये हमेशा ध्यान से निकल जाता है पॉइंट. जब इजा पास्ट के साथ आता है, इट पुशेस द मीनिंग इन फ्यूचर. लम डज द सेम टू प्रेजेंट टेंस. जो प्रेजेंट टेंस के पास आता है, इट पुशेस द मीनिंग इन द पास्ट. ठीक है? सो यू डिड नॉट सीक फॉरगिवनेस. ठीक है? लन यगफिरा. फ्यूचर है सर. फ्यूचर है, बिल्कुल है. फ्यूचर नेगेशन है. अच्छा फाद, ये यगफिरा इज लाइट. यगफिरा इज लाइट. है ना? क्यों लाइट है यगफिरा? बिकॉज ऑफ लर्न. Because of line. लन. जी बिल्कुल ठीक हो गया. इसका मतलब टू फॉरगिव है. देखिए, यस्तगफिरु और यगफिरु क्या फर्क है? ये वाली जो फॉर्म होती है ना, जिसमें ये यस्तगफिरु वाली फॉर्म, इसमें ये एडिशन किया जाता है. आप देखेंगे, आप जब सर्फ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये है गफरा और ये भी है गफरा. ठीक है? लेकिन इसमें कुछ एडिशंस हुए हैं, एडिशनल. ठीक है? सीन और ता और ये सब चीजें एडिड है इसके अंदर. दिस कम्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक टेम्पलेट. ठीक है? जब आपको पास इस तरह का फेल होता है, तो बेसिकली दिस बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट इज अबाउट सीकिंग समथिंग. When I take ghafara and I put it in yastaghfiru form, it means I seek forgiveness. When I don't put it in that form and I just use it normally like yaghfira,
yaghfiru, it means I forgive. So seeking forgive and to forgive, that's the difference. ठीक है? तो यहाँ पे हमने कहा you did not seek forgiveness, and यहाँ पे हम कह रहे हैं he will not forgive. ठीक है? When what is the file inside this? Yaghfira. Huwa. So what should we do? Outside doer. Is there one? Allah. Word Allah. ठीक है? So what would be the total translation of lan yaghfir Allahu? Is point इसकी. Allah will And not Allah will not forgive. Allah will not forgive. Allah will not forgive. This is a very interesting ayah in Surah Munafiqun. Sawa'un alayhim. It doesn't matter to them. Astaghfarta. What is astaghfarta? पता है आप लोगों को ये सब कुछ? Nasarta. Nasarta. ठीक है? Astaghfarta is nasarta. Means if you seek forgiveness. ठीक है? So it doesn't matter to them. Allah is talking to the Prophet. It doesn't matter to them if you seek forgiveness, lahum, for them, jar majroor. Means or, is or. जैसे व and होता है, और होता है. Yeah. Or you did not seek forgiveness for them. Lam tastaghfir lahum. So Allah is saying it doesn't matter if you seek forgiveness for the hypocrites or you do not seek forgiveness. You did not seek forgiveness for the hypocrites. What will Allah do? Allah will not forgive. Allah will not forgive them. That's Allah is talking to the Prophet. ठीक है? कि आप forgiveness मांगे उनके लिए ना मांगे, Allah is not going to forgive them. और सर जो फहद भाई आगे जो है इन अल्लाह ला, तो ला यहदिल कौमुल फासिकीन, तो बेशक अल्लाह फासिकीन की कौम को हिदायत नहीं देता, तो ये भी नेगेशन है ना? बिल्कुल. ला यहदी, मैंने इसको इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि यहदी इज अ कॉम्प्लेक्स फेल. आप इसको टेबल पे मैप नहीं कर सकते अपने यंसुरू वाले. यस, बट यू राइट, दिस इज अ नॉर्मल नेगेशन दैट इंडीड अल्लाह ही डज नॉट गाइड Al-Fasiqeen, the nation of the corrupt nations. कौन सा मुल्क ज़हन में आया? सबके आया होगा. मेरे तो आ गया था. सबके ज़हन में आया होगा. सबके ज़हन में आया होगा. वकास भाई के ज़हन में किदारा ही आया होगा. वकास भाई के ज़हन में किदारा आया होगा, मुल्क नहीं आया होगा. वकास भाई आ गए मेरे नहीं, मुल्क भी और अदारा भी. सही बात है. वकास भाई के मुताबिक मुल्क वो इदारा ही चला रहे. हाँ, वो मुल्क तो है ही नहीं, वो अदारा ही मुल्क है भाई. तो इससे मेरी आपको एडवाइस ये है कि go to tanzeel.com if you have time, or any app that you use. What I normally do if I have to hunt for something, ठीक है, tanzeel.com है ना ये, इधर आप आए and you just write what you have to write. For example, आप यहाँ पे क्या मुझे वो दिखा दो, लम्मा. It will start to show you all the ayahs जहाँ पे इस तरह का कंस्ट्रक्ट यूज हुआ है लम्मा टाइप का. कहीं लम्मा होंगी, कहीं नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल ये आयत नंबर 1 है, فَلَمَّا أَضَاءَتْ. Now أَضَاءَتْ is the past tense. So I know when lamma is used with the past tense, it means when. When it is used with present tense, it's a negation scenario. So I'm looking for lamma with the present tense. So I'll go lamma ya'tikum. Number 5 को देखें आप. Lamma ya'tikum. Now this is the present tense scenario. Okay. So this is how you could find more examples in the Quran by just going there and typing some words. ठीक है? So inshallah जब आप inshallah read out करें and you encounter any of these hurufs, pause and ponder on them कि ये क्या है. ठीक है? Feel free to look up the meaning in the app and try to produce the translation. सही है? Any question? Not at this moment, Fahad bhai.
आई थिंक फहद हम उस लेवल पे आगे जहाँ पे ना हमें अब बार बार रेगुलर रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट जो है ना आगे पीछे हो रहे हैं, खासतौर पे जिस तरह वर्ड एकदम मुझे कहना है ये कौन सा चार्ट पे मैप हो रहा है तो मिक्स हो जाता है कई दफा। हाँ, ऐसे ही होता है। बहुत एक ज्यादा हो रहा है मिक्स असल में। एक कॉम्प्रिहेंसिव, हमें ना एक पूरी सूरा को कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है, एंड टू एंड विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी अदर थिंग, अप्लाई टू वन सूरा। तो मेरे ख्याल में सूरा मुनाफिकून इज अ ग्रेट सूरा टू कंप्लीट टुगेदर। हम यहाँ पे पॉज लगा के सूरा मुनाफिकून को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली एंड तक। और जितना हमें उसमें पता है हम पूरा उसको एंड तक डिकोड करके खुद ट्रांसलेशन करके वो एक पूरा हमारा कंप्लीट होगा ना, एक माइलस्टोन, तो हमें एक पता चलेगा कि हाँ जी, एक फीलिंग आएगी वी हैव डन समथिंग, ठीक है। और ऑल्दो के सूरह मुनाफिकून को अभी आप करेंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन इट दैट वी हैव नॉट लर्नड येट, लेकिन जो हमने किया हुआ है हम उसको अप्लाई करें। तो ये अगले हफ्ते का होमवर्क ले लें फहद भाई, मुझे पता है वकास भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते का होमवर्क ले लें कि ये हम लोग कोशिश करें और फिर आपके साथ डिस्कस कर लें अपना अपना हाँ। वर्जन। बिल्कुल, आई मीन ऑफ कोर्स आप लोगों को मैं खुद तो नहीं ओवरलोड करना चाहता, लेकिन आप लोग अगर विलिंग है तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू वुड डू टू योरसेल्व्स, कि आप सूरह मुनाफिकून उठाएं एक चीज डू व्हाट यू कैन। जी मैं वो अगर हम लोग अगली क्लास में हम आपस में जो पूरा फेल है ना आपस में सब डिस्कस कर लें। फाबिक आप बस मतलब सुनते रहें, जहाँ पे हम गलत हो या वो कर रहे हैं आप हमें गाइड कर दें, हम एक दफा डिस्कस कर लें, उससे अगली क्लास में हम लोग फिर ये एक सूरत लेके चलें थ्रू आउट। जी उससे ये होगा कि अगर हम आपस में डिस्कशन करेंगे ना तो जिसके जो जो वो है ना कंफ्यूजन है वो क्लियर बेहतर तौर पे हो जाएंगी मेरा ख्याल जी से, अगर सब बिल्कुल जी, सही, एग्री बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही, एग्री कर रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो डू कि आपके जो टॉपिक्स आप समझते हैं आपने रिवाइज करने हैं, आई मीन यू कुड चूज के हु इज ब्रिंगिंग विच टॉपिक, एंड देन in the class you just become a teacher and you present it। आपको जहाँ पे व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी I'll do the typings for you, जो आप कह रहे होंगे, ठीक है, that is not a problem। लेकिन अगर आप लोग उठ के एक एक टॉपिक को उठा के इस तरह रिवीजन करने लगे, where I can just help you out thing with these typings and stuff, तो आप लोग मेरे ख्याल में अच्छा रिवाइज कर लेंगे सब कुछ। तो स्वीडन वालों से अच्छा तो कोई टीचर होता नहीं है फहद भाई। गलत फहमी है आपको। तो डॉक्टर साहब पे अटैक कर दिया शम्स भाई। मुस्तफा बहुत अच्छा तो वो तो पढ़ाता है। प्रिंसिपल है ना, देखे मुस्तफा भाई आप गलती बात कर जाते हो, प्रिंसिपल के आगे टीचर कुछ नहीं होता। जब रिवीजन शुरू की है ना जो पढ़ा रहा था खुद कंफ्यूज हो जाते हैं एक वो भी पॉइंट हाँ, सही चलिए बात है। लेट्स मेक अ कॉन्क्रीट प्लान ना, नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे हैं हम बताएं, व्हाट डू यू वांट, क्या do you want to revise a topic yourselves, or do you want to work on surah and bring it and then discuss in the class between yourselves? फहद कैसे ये करें? नेगेशन कितना, नेगेशन कंप्लीट हो गया टॉपिक? फेल बेस्ड नेगेशन का हमने भी कंप्लीट हो cover गया। कर अच्छा लिया है। मेरे ख्याल हाँ से जी, हम इधर पॉज करते हैं, नेक्स्ट क्लास हाँ जो जी, है हम सारा सोए वाला जो आइडिया है वो करते हैं, हर बंदा एक एक टॉपिक कवर कर ले। मेरे ख्याल से मैं लाइट और लाइटेस्ट कवर कर सकता हूँ एक्सप्लेन करने में। अच्छा अम, और जो है बाकी हर बंदा एक एक टॉपिक चूज कर ले, और हम पीछे इवन नाउन भी हम प्रैक्टिस कर ले, और उससे अगली क्लास जो है ना वो हम सारे एज अ होमवर्क जो है ना सूरह मुनाफिकून करके आए, तो हम फिर आपस में टैली कर लें सारे जी आगे रेस्ट क्लास से। इससे होगा ये कि नेक्स्ट वीक हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी पिछली, और उससे अगली क्लास जो है वो उसका हम एप्लीकेशन कर लेंगे। अच्छा, नो कंपल्शन ऑन एनीबॉडी, अगर कोई नहीं करना चाहता तो बेशक, लेकिन जो भी करना चाहता है तो ऑफ कोर्स प्लीज डू। तला, आप कौन सा टॉपिक उठाना चाह रहे हैं? लाइट और लाइटेस्ट कर लें। तलहा विल पिक अप लाइट एंड लाइटेस्ट fails, ठीक है। लॉकडाउन। anyone else? मैं पैसिव उठा लेता हूँ। Sohaib is picking up passives. Any other volunteer? वकास भाई के लिए नेगेटिव्स अच्छा रहेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट वकास भाई पे डाल दें। जो उस्ताद मोहतरम बोले जी।
ना लब्बैक। अरे अरे सर ना वकास भाई, जो आप बताए ना करेंगे, यानी आप चाहते हैं कि आप कुछ टॉपिक प्रिपेयर करके लाएं और यहाँ पे क्लास में रिवाइज कराएं, या कुछ और अप्रोच आप चाहते हैं कि मैं कुछ और करके आ जाऊं, और यू जस्ट वांट टू कम एंड अटेंड एंड लिसन इन? एवरीथिंग इज फाइन जी, negation. वकास भाई को बेचारे हालात ने जो है ना और ने नेगेटिव बना दिए। हाँ जी। और कुछ लोकल दोस्तों की कंपनी आप करना, आपके जो दोस्त होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है। सही बात है। और शम्स भाई आप सर कुछ मैं सोच रहे हैं? स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। बाकी नहीं, बाकी सारा कोर्स शम्स भाई पढ़ाएंगे, फिर रेस्ट। मुस्तफा what do you want? सर वो मैं शम्स भाई के नीचे वाला स्टूडेंट। अच्छा चले, क्योंकि हम लोग टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, 1 घंटा होता है, तो 3 टॉपिक्स हैं, तो लेट्स से 20 मिनट्स ईच वुड गिव अस 1 आवर, ठीक है ना? तो जो भी प्रिपरेशन आप जो भी आपने करनी है, तलहा, सुहेब एंड वकास भाई, 20 मिनट्स को जहन में रखते हुए करें। नहीं तो अगर हम समझे कि कोई टॉपिक हमने ज्यादा एक्सटेंसिव करना है, तो वी कैन डिसाइड देन एंड देयर। लेट्स कीप इट फ्लेक्सिबल। ठीक है। ठीक है, चले इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। चले Thank जी, you बहुत so much. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह Thank you नेक्स्ट so वीक much. मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।